Hello, welcome students. I am Veena Agarkar from New Arts, Commerce and Science College, Parnell. Students, we have started subject secretarial practice. In this subject, we have started second topic, sources of corporate finance. In sources of corporate finance, we have seen the types of capital, that is own capital and borrowed capital. We have already seen 2-3 video regarding the own capital. After that, our last video, we have seen the concept of borrowed capital. Borrowed capital means a loan taken by a company. Company having various sources of borrowed capital, that is by issue of debentures, accepting public deposits, bonds, ADR, GDR, banks, financial institutions, trade credit, etc. In this borrowed capital, we have started the concept of debenture. In last video, we have seen the features of debentures. In this video, we have to see the concept of types of debentures. As per the Companies Act, there are 8 types of debentures, but mainly the 4 types of debentures are there, and in that 4 types of debenture, there are again two types of debenture. So actually there are 8 types of debenture. So let us see the different types of debenture. So first type of debenture is on the basis of security. On the basis of security, company can issue 2 types of debentures, that is secured debentures and unsecured debenture. Second type is on the basis of transfer. On the basis of transfer, again company can issue 2 types of debentures, registered debentures and bearer debentures. After that, on the basis of repayment, company can issue 2 types of debentures, redeemable debentures and irredeemable debentures. And the fourth type is on the basis of conversion, company can issue 2 types of debentures, that is convertible debentures and non-convertible debenture. So students, there are 8 types of debentures and they having main 4 types on the basis of security, transfer, repayment and conversion. So let's see in details types of debenture. So the first type of debenture is secured debenture. The debentures which can be secured by the property of the company are known as secured debentures. They are secured through trust deed. मीन्स कंपनी कैन इशू द डिबेंचर्स. कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है तो डिबेंचर होल्डर को कंपनी की प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके दी जाती है, सिक्योरिटी के लिए दी जाती है. मतलब कंपनी अगर उनके अमाउंट नहीं दे सकती तो कंपनी की जो सिक्योरिटी करके प्रॉपर्टी दी है वो प्रॉपर्टी बेचकर वो अपने अमाउंट ले सकते हैं. और ये जो सिक्योरिटी कंपनी प्रोवाइड करती है वो सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट जिस डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड होता है उसे ट्रस्ट डीड बोला जाता है. सो दे आर सिक्योर्ड थ्रू ट्रस्ट डीड. मतलब ये जो डिबेंचर है वो सिक्योर्ड डिबेंचर है. सेकेंड टाइप ऑफ डिबेंचर इज अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. The debentures which cannot be secured by the property of the company are known as unsecured debentures. The issue of these debentures is now prohibited by the Companies Act 2013. Means reverse type of debenture is unsecured debenture. When company issues the debentures, at that time company should not provide any type of property mortgage to the debenture holder. They are known as unsecured debenture. But nowadays, as per the Companies Act, company cannot issue such type of debentures. मतलब इस टाइप के debentures अब कंपनी इशू नहीं करती. Then third type of debenture is registered debentures. Registered debentures are those debentures on which the name of holder are recorded. A company maintains
register of debenture holders in which name, address and other details of debenture holders are entered. Transfer of these debentures requires the execution of regular transfer deed. Means जो डिबेंचर्स कंपनी रजिस्टर करती है, मतलब कंपनी के पास ये डिबेंचर होल्डर का एक रजिस्टर मेंटेन है जिसके अंदर डिबेंचर होल्डर्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है, इसलिए इन्हें रजिस्टर डिबेंचर बोला जाता है। ये डिबेंचर्स अगर किसी को बेचने हैं, ट्रांसफ़र करने हैं, तो रेगुलर ट्रांसफ़र की जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर यूज़ करके वो डिबेंचर ट्रांसफ़र कर सकता है। ये डिबेंचर होल्डर्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास रिकॉर्ड की जाती है, इसीलिए उन्हें रजिस्टर्ड डिबेंचर बोला जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिबेंचर इज बियरर डिबेंचर। Bearer debentures are those debentures on which the name of holders are not recorded. मतलब bearer debenture holders जो है उनका कंपनी कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती, क्योंकि bearer debenture सर्टिफिकेट के ऊपर डिबेंचर होल्डर का नाम नहीं लिखा जाता। A company does not maintain register of debenture holders. इस तरह के डिबेंचर होल्डर्स का कंपनी रजिस्टर मेंटेन नहीं करती। सच डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय मेयरली डिलीवरी। अगर ये डिबेंचर ट्रांसफ़र करने हैं तो इजीली एक पर्सन दूसरे पर्सन को डिबेंचर सर्टिफिकेट देगा, उसके बदले में पैसे लेगा, उसके डिबेंचर उस पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि ये डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर डिबेंचर होल्डर का नाम रिकॉर्ड नहीं होता। Payment of interest is paid by coupons attached to the debenture certificate. ये डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी इंटरेस्ट किस तरह से पेड करती है? इस डिबेंचर होल्डर्स को कूपन्स दिए जाते हैं डिबेंचर्स के साथ, वो कूपन्स के थ्रू कंपनी उनको इंटरेस्ट पेड करती है। बियरर डिबेंचर जो है वो डिबेंचर अगर लॉस्ट हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि जिसे वो मिल जाएंगे वो उसका ओनर हो जाएगा। बट ये डिबेंचर का एक एडवांटेज क्या है कि ये डिबेंचर्स इजीली ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिसे चाहिए वो उस डिबेंचर को बेच सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिबेंचर इज रिडीमेबल डिबेंचर्स। Debentures are mostly redeemable, means payable at the end of some fixed period as mentioned on the debenture certificate. Repayment can be made at fixed date at the end of specific period. The provision of repayment is normally made in trust deed. Redeemable means repayable. कंपनी जो डिबेंचर्स इशू करती है, जो रिडीमेबल डिबेंचर है, वो एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के लिए इशू किया जाता है। वो टाइम लिमिट जब ख़त्म हो जाता है तो कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को उनके अमाउंट रिफ़ंड करती है। ये जो डेट है कि जिस तारीख को कंपनी उनके अमाउंट रिफ़ंड करने वाली है, वो डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर रिकॉर्ड की जाती है, मेंशन की जाती है। उसी तारीख को कंपनी डिबेंचर होल्डर्स के अमाउंट उनको पेड करती है। इसके बारे में जो भी प्रोविजंस हो वो ट्रस्ट डीड में रिकॉर्ड की गई रहती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिबेंचर इज इररिडीमेबल डिबेंचर्स। These kinds of debentures are not repayable during the lifetime of the company. They are repayable only after the liquidation of the company or breach of any condition or some contingency arises. Irredeemable debenture means ये डिबेंचर होल्डर के अमाउंट कंपनी जब तक चालू है तब तक उनके अमाउंट रिफ़ंड नहीं होती। फिर इनकी अमाउंट कब रिफ़ंड की जाएगी? दे आर रीपेबल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। जब कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो उनके अमाउंट रिफ़ंड की जा सकती है, या उनसे रिलेटेड कोई कंडीशन अगर ब्रीच हो जाती है, मतलब कोई कंडीशन निभाई नहीं जाती है, टूट जाती है, तो उस समय उनके अमाउंट रिफ़ंड की जाती है। और सम कॉन्टीजेंसी अराइजेस, कोई भी अगर कॉन्टीजेंसी आती है, कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि उसके अंदर वो डिबेंचर होल्डर के अमाउंट कंपनी को
रिफंड करनी है तो वो रिफंड किए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिबेंचर इज कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। These debenture holders have right to convert the debentures into equity shares after a specific period of time. Such right is mentioned in debenture certificate. The issue of such debenture must be approved by special resolution in general meeting. Such debenture holders are entitled to equity shares at a lower rate than market value. मतलब ये डिबेंचर्स जो है, ये डिबेंचर होल्डर को कंपनी एक राइट प्रोवाइड करती है कि उनकी टाइम लिमिट ख़त्म होने के बाद, डिबेंचर का पीरियड ख़त्म होने के बाद कंपनी उनकी वो डिबेंचर्स जो है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करती है। मतलब व्हेन कंपनी इशूज सच टाइप ऑफ डिबेंचर इट शुड बी मेंशन ऑन डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर ही मेंशन किया जाता है कि जो टाइम लिमिट ख़त्म होने के बाद कंपनी ये डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर के बदले इक्विटी शेयर्स इशू करेगी। इस तरह से जो डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं उसके लिए कंपनी को एक स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना पड़ता है। Such debenture holders are entitled to equity shares at lower rate। मतलब कंपनी उनको कम रेट से इक्विटी शेयर्स इशू करती है, जो मार्केट में वैल्यू है उससे कम रेट से डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिबेंचर इज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। These debentures are not converted into equity shares on maturity. These debentures are redeemed on maturity date। मतलब जो डिबेंचर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, टाइम लिमिट ख़त्म होने के बाद उनके अमाउंट कंपनी उनको रिफंड करती है, उन्हें नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कहा जाता है। These debentures has no appreciation in value। मतलब मार्केट में उनकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होती। So students, these are the types of debentures. Then the next concept is acceptance of deposit। Means company can collect the borrowed capital by accepting deposit also। So deposit क्या है? Public deposit is an important source of short term finance requirement of company। कंपनी जो कैपिटल कलेक्ट करती है जनरल पब्लिक से, वो कैपिटल शॉर्ट टर्म के लिए कलेक्ट किया जाता है, उसका एक मेन सोर्स है पब्लिक डिपॉजिट्स। कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर मिनिमम 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम 36 मंथ्स। कंपनी ये जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है वो मिनिमम 6 मंथ के लिए और मैक्सिमम 36 मंथ्स के लिए। दे आर कॉल्ड एज पब्लिक डिपॉजिट्स। उन्हें पब्लिक डिपॉजिट बोला जाता है क्योंकि वो अमाउंट कंपनी पब्लिक से कलेक्ट करती है। जनरल पब्लिक इज इन्वाइटेड टू डिपॉजिट देयर सेविंग विथ द कंपनी फॉर वैलिड पीरियड। जनरल पब्लिक को बोला जाता है कि उनको मतलब बैंक में उनके अमाउंट रखने की बजाय वो उनके पास जो अमाउंट है वो कंपनी में इन्वेस्ट करे। इन्वेस्ट करते समय जैसे हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में अमाउंट, उस तरह से ये अमाउंट हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उसे पब्लिक डिपॉजिट बोला जाता है। इट मे बी वैलिड फॉर वेरियस टाइम लिमिट फ्रॉम 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स। इंटरेस्ट इज पेड बाय कंपनी ऑन डिपॉजिट। कंपनी ये डिपॉजिट होल्डर्स को क्या पेड करती है? इंटरेस्ट पेड करती है। द कंपनी इशूज डिपॉजिट रिसिप्ट टू डिपॉजिटर। जो डिपॉजिट होल्डर ने कंपनी में डिपॉजिट रख दिया है उसके प्रूफ के तौर पर कंपनी उसे डिपॉजिट रिसिप्ट देती है। डिपॉजिट रिसिप्ट एंड इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन और डेप्ट बाय द कंपनी। कंपनी ने लोन लिया हुआ है उसका एक्नॉलेजमेंट करके डिपॉजिटरी रिसिप्ट कंपनी इशू करती है। Deposits are either secured or unsecured loan offered by the company। डिपॉजिट होल्डर्स को कंपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके देती है या नहीं भी दे सकती। देन द मीनिंग ऑफ डिपॉजिट।
As per Companies Act 2013 Section 2 of 31, डिपॉजिट की डेफिनेशन देखते हैं. Deposit includes any receipt of money by way of deposits or loan or in any other form by a company, but does not include such categories of amount as may be prescribed in consultation with the Reserve Bank of India. मतलब डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट ऑफ मनी. डिपॉजिट मतलब कंपनी ने किसी भी पर्सन से लिए हुई मनी है और लोन है टेकन फ्रॉम अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी से लिया हुआ, बट डज नॉट इंक्लूड द कैटेगरीज ऑफ अमाउंट मे बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. पर उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो जो अमाउंट डिपॉजिट के अंडर नहीं आती वो अमाउंट डिपॉजिट करके कंसिडर नहीं की जाती. सो डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग, मतलब कंपनी ने जो अमाउंट ली है वो अमाउंट कौन सी अमाउंट है जो डिपॉजिट नहीं है. दैट इज एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से ली हुई कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं समझी जाती. एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, बैंक से लिया हुआ या बैंकिंग कंपनी का लोन जो है उसे डिपॉजिट नहीं बोला जाता. एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट से मिली हुई अमाउंट. एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से ली हुई जो अमाउंट है वो भी डिपॉजिट नहीं समझी जाती. एनी अमाउंट रेज बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल पेपर कर इशू करके जो अमाउंट कलेक्ट की जाती है वो भी डिपॉजिट नहीं है. एनी अमाउंट रेज बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स इशू करके भी जो अमाउंट कलेक्ट की जाती है वो डिपॉजिट नहीं है. एनी अमाउंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट में जो अमाउंट मिलती है वो भी डिपॉजिट नहीं है. एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू एनी शेयर और डिबेंचर्स, शेयर्स और डिबेंचर्स का जो सब्सक्रिप्शन है उसके तौर पर जो भी अमाउंट कलेक्ट होती है वो भी डिपॉजिट करके कंसिडर नहीं की जाती. मतलब ये जो 8 पॉइंट्स दिए गए हैं वो अमाउंट जो कंपनी के पास कलेक्ट होती है वो डिपॉजिट नहीं समझी जाती. सो स्टूडेंट्स, in this chapter we have seen the in this video we have seen the concept of types of deposits and acceptance of deposits. Thank you for watching the video. I hope you like the video. Subscribe my channel. Thank you.